Previous session we have discussed the writers, most important writer from the literary theory. लास्ट राइटर कौन सा रिवीजन किए थे हम लोग? फॉर्मलिज्म से सारे राइटर्स हो गए ना. स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग फर्डिनेंड ससूर और क्लॉड लेविस, स्ट्रॉस, है ना, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स तो हम लोग डील कर चुके थे. एंड टुडे, because this is also included in our part of our syllabus, today we are going to discuss the most important writer from literary criticism, that is Longinus. Longinus from 1st century. Longinus. Give the title. Longinus. Longinus. Longinus कौन था? बोलो. Longinus. He is a writer from 1st century AD. लिखो. He is a writer from 1st century AD. 1st century का था ये. 1st century. He is known for giving the concept of sublime on his sublime. कुछ याद आ रहा है? पढ़े हो? On his sublime. On his sublime is the most important work written by Longinus. Now, the question is, what do you mean by sublime? This word sublime, बताओ. Sublime का मतलब क्या होता है? What do you mean by sublime? ये नोट करना, because this is the most important work. This is a book written by, it's a book written by Longinus on his sublime. लिखो फटाफट, चलो. And somewhere we'll find this is written on the sublime. On the sublime. On the sublime. क्लियर? चलो, एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज याद रखना. फर्स्ट सेंचुरी में जो ये राइटर लॉन्जाइनस आया था, ठीक है, तो ये लॉन्जाइनस बताया जाता है, इसका जो पूरा नाम था कैसियस लॉन्जाइन बोलते थे. क्या बोलते थे? कैसियस लॉन्जाइनस. नोट करो. ही वॉज ऑल्सो नोन एज he is also known as Cassius Longinus. मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, याद रखना, इसको भूलना नहीं. कैसियस लॉन्जाइनस. चलो, एक चीज और लिखो फटाफट, एकदम लिखते जाओ. On the Sublime. This is the book. This is the book on the Sublime. It was translated by, it हो रहा है क्लियर? कोई दिक्कत? चलो. On the Sublime, it's a book written by Cassius Longinus, and this was translated by Hall. This was translated by Hall. Full name John Hall. John Hall. नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका ट्रांसलेशन कब हुआ था? 1652 में. It's the most important work you have to remember, because there are many questions directly being asked from this particular one. On his sublime, on the sublime, most important work written by Cassius Longinus. And we are going to deal with this important concept of sublimity or sublime. What do you mean by sublime? Title दो, sublime. Sublime. First of all, I would like to hear, है ना, what do you think about this word sublime? Sublime के बारे में तुम क्या सोचते हो, बताओ. What do you mean by sublime? लग रहा है sublime खूबसूरत, related to some beauty, कुछ लग रहा है ना.
ब्यूटीफुलनेस, नेचर, रिलीजियस ऑउ, क्या है सबलाइन? इन द वर्ड्स ऑफ लॉन्जाइनस, सबलाइन क्या है? लिखो फटाफट। इन द वर्ड्स ऑफ लॉन्जाइनस, सबलाइन इज क्या है? फटाफट लिखो, एग्जैक्ट जो लिखना। a certain a certain distinction a certain distinction and excellence a certain distinction and excellence, फटाफट लिखो, a certain distinction and excellence, clear, in expression. So he is talking about expression, he is talking about expression, लिखो फटाफट। In his word, the definition of sublime means क्या? certain distinction and A certain distinction, बिल्कुल, and excellence in expression, sublime. So आप समझना, anything related to इसका 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 की फैक्ट लिख लो। व्हाट डू मीन बाय सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस? की फैक्ट लिखो, की फैक्ट लिखो फटाफट। फर्स्ट वन लिखो, लिखते जाना। द सबलाइम एन आइडिया एसोसिएटेड विथ रिलीजियस ऑउ, रिलीजियस ऑउ, पहला क्या होगा? रिलीजियस ऑउ, रिलीजियस ऑउ, द फर्स्ट वन एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस ऑउ। सेकेंड वास्टनेस, वास्टनेस, सेकेंड वास्टनेस, वास्टनेस, VAST, वास्टनेस। थर्ड नेचुरल मैग्निफिकेंस, नेचुरल मैग्निफिकेंस, लिखो फटाफट। Religious awe, vastness, natural magnificence, these are the words which were told by the writer Longinus, Cassius Longinus, clear? So religious awe, vastness लिखते हो, natural magnificence लिखो फटाफट, natural magnificence, and strong emotions, natural magnificence and strong emotions, and a strong emotion according to Longinus. ठीक है, अब सबलाइम को समझते हैं। देखो ये सारे वर्ड्स नोट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे वर्ड्स नोट रखना। एक चीज और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबलाइम कोई ऐसा चीज तो विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इट्स ब्यूटी नेवर, कभी भी उसका खूबसूरती खत्म नहीं होता है। समझ में आया? एनी पीस ऑफ लिटरेचर, एनीथिंग विच यू सी इन दिस फिजिकल वर्ल्ड और इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड, सो एनी ब्यूटीफुल थिंग, रिलेटिव ब्यूटीफुल थिंग, विच ब्यूटी नेवर कम्स टू एन एंड, रिलेटेड टू सबलाइम, रिलेटेड टू सबलाइम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो एक चीज और लिखना, एक चीज और देखो, ज्यादा लेंदी नहीं करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दिस राइटर इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन सेशन, तो हमको रिवीजन की तरह ही लेना है, ज्यादा भी लेंदी नहीं करना, ठीक है? डीप तो पढ़ने का ज्यादा टाइम था, बिकॉज समय आ गया है, नाउ दैट द टाइम इज सो क्लोज एंड यू हैव टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, 1 महीना में एग्जाम है। समझ में आ रहा है? चलो लिखो, on the sublime, the book where Longinus warns, against certain faults, that may spoil sublimity, certain faults that may spoil
sublimity, that may spoil sublimity, that may spoil sublimity. एक चीज और यहां पर याद रखना पहले, as we are dealing with this writer Longinus, the greatest critic ever, है ना, he is known as, Longinus is known as first romantic critic, first romantic critic. Who told this statement? Who told this statement that he is the first romantic critic? बताओ, who told this? फटाफट बोलो जल्दी, सब भूल गए क्या? स्कॉट जेम्स. Who told this? स्कॉट जेम्स. नहीं अगर याद है फिर से लिख सकते हो, कैन जस्ट गो फॉर दिस बिकॉज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. स्कॉट जेम्स, स्कॉट जेम्स, द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक. वाई रोमांटिक क्यों बोल रहा है रोमांटिक इसको, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना पहले. ठीक है, वाई इज टेलिंग दैट द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है वो. क्यों है रोमांटिक क्रिटिक? क्योंकि देखो 18th सेंचुरी, क्योंकि सब्लिमिटी 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है. सब्लिमिटी इज एक्चुअली डीलिंग विद 18th सेंचुरी कॉन्सेप्ट. ओके, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? 18th सेंचुरी से मतलब जो भी ट्रांजिशन पीरियड हो गए, ट्रांजिशन पीरियड हो गए, है ना, जिसमें जिसमें ये इसको प्री रोमांटिक भी बोलते हैं. इससे पहले एक और पीरियड आया था, इससे पहले एक और पीरियड आया था. कौन सा पीरियड था? न्यू क्लासिकल एज. न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, ट्रांजिशन पीरियड. इसमें बात किस चीज का किया जा रहा था हर वक्त? बात किस चीज का किया जा रहा था इस हर वक्त? कि क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करो, क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करो. पहला चीज ये है ना, जो बोला जा, जो हिज रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन, है ना, as we have seen the definition according to Longinus, that he is forcing towards this statement this word called expression. expression को बार बार ला रहा है. expression क्या? expression को कैसे define करोगे इसका? how can you define according to Longinus that what he means to say related to expression? कैसे define करोगे? तो पहला क्लासिकल पीरियड मीन्स क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करना. उस टाइम पर नियो क्लासिकल भी एज चल रहे थे और ट्रांजिशन में प्री रोमांटिक भी चल रहे थे. और ये सारे के फीचर्स क्या थे? सारे के फीचर्स क्या थे? सारे के फीचर्स क्या थे? डीलिंग विथ इकास्टेसी, 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 परम आनंद की प्राप्ति. रोमांटिक एरा में हम लोग देख रहे थे ना, इमेजिनेशन, 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 डीलिंग विथ इकास्टेसी, इमेजिनेशन. समझ में आ रहा है? हाँ, तो रोमांटिक पीरियड का जितना भी चीज है, इमेजिनेशन था, ग्रेटेस्ट फीचर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, मिलांकोली, मिलांकोली, स्केप, है ना, नेचर, कहीं पर रिलीजियस भी था. अगर रिलीजियस हम रिलेट कर सकते तो वी कैन रिलेट दिस रिलीजियस फीचर विद न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल में रिलीजियस था कुछ हद तक, थे रोमांटिक में तो थे ही. समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो रोमांटिक पीरियड और ट्रांजिशन सॉरी प्री रोमांटिक पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड, है ना, ये जो दोनों हैं, ट्रांजिशन पीरियड दैट इज आल्सो नोन एज प्री रोमांटिक पीरियड और न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल पीरियड. सो दीज टू where we can say that means the sublimity is related to 18th century concept. समझ में आ रहा है? 18th सेंचुरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है.
ऐसा खूबसूरत चीज जिसका कभी भी ब्यूटी फेड अवे नहीं होता है, रिलेटेड टू सबलाइम, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन केट्स, कुछ याद आ रहा है? दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? क्लियर? चलो, इसमें कुछ बेसिक चीज है लिखाने को, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और देखना है थोड़ा सा हम लोग को, है ना। चलो, एज वी कहां पर थे हम लोग? लॉन्जाइनस वॉन्स अगेंस्ट सर्टेन फॉल्ट्स दैट मे स्पॉइल सब्लिमिटी। हम लोग बता रहे थे ना कि कैसे सब्लिमिटी को स्पॉइल हो सकता, सब्लिमिटी को स्पॉइल कर सकते हैं। सब्लिमिटी कैसे स्पॉइल होता है अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस? सो पहला लिखना, फर्स्ट वन, there are many factors through which that sublimity, that sublime, है ना, the concept can be exploited. So there are many things to deal with, but according to Longinus, what are the most important thing we are going to write here? The first one, लिखो, pedantry or bombast, pedantry or bombast, pedantry, pedantry or bombast, pedantry or bombast. Pedantry or bombast. Second, puerility, 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 pu है ना, erility, puerility बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना, प्यूरिलिटी। थर्ड, एम्पटी पैसन, थर्ड एम्पटी पैसन, थर्ड एम्पटी पैसन। फोर्थ, फ्रिजिडिटी, frigidity, फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी। क्लियर? फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट वन क्या था? पेडेंट्री और बोम्बास्ट, पेडेंट्री और बोम्बास्ट। अब देखो कैसे लॉन्जाइनस बोलता है क्या कि कुछ ऐसे फॉल्ट हो सकते जिसके कारण सब्लिमिटी बेकार हो जाता है। सो व्हेन यू विल फाइंड इन अ टेक्स्ट, क्योंकि बिकॉज इज अ राइटर फ्रॉम लिटरेचर, सो ही इज रिलेटिंग समथिंग रिलेटेड टू टेक्स्ट, ही इज रिलेटिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्स्ट। जब भी टेक्स्ट में देखते हैं तो कोई बोम्बास्टिक वर्ड यूज किया हुआ है, कोई बोम्बास्टिक चीज यूज किया गया है, बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक मीन्स बोम्बास्टिक, बेमतलब का, बहुत ही ऐसा वर्ड यूज करना, ऐसा हार्ड वर्ड यूज करना ताकि कोई समझ में ही ना आए, है ना, बोम्बास्टिक। क्लियर? bombastic. So in a text when you will find that something bombastic is used by writer, bombastic in the form of a figure of a speech, any word, any ponderous word, any hard word which is not understandable and easily by the audience, by the readers. That's how the reader always come with his answer called bombastic. तुमने bombastic use किया है, and if the word bombastic, if anything is related to bombastic has been used here, that will become the reason of exploitation of that text. समझ में आ रहा है? bombastic. Second, puerility. Second, puerility, है ना, प्यूरिलिटी को क्या बोलते हैं? स्टिलनेस से भी बोलते हैं, यहां पर लिख लेना, प्यूरिलिटी। फर्स्ट था bombastic, which is also known as pedantry. Second, puerility, that is stillness or childishness. Puerility, 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 इसको देख लेना, puerility, puerility, इसको स्टिलनेस से कंपेयर करते हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज स्टिलनेस और चाइल्डिशनेस, चाइल्डिशनेस, है ना, प्यूरिलिटी, स्टिलनेस और चाइल्डिशनेस। तो समझना, बहुत ही अच्छा ये पोएट्री किया है यहाँ पर, है ना। इसको और भी एक वर्ड दे सकते हो, है ना, सिलीनेस, सिलीनेस, इसको रहने दो, इसको इसी ये दो चीज से समझते हैं। प्यूरिलिटी को हम लोग चाइल्डिशनेस से बोल सकते हैं, सिलीनेस से बोल सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट में, कोई भी पोएट्री में, व्हेन यू विल फाइंड दैट द पोएट्री डीलिंग विद सम चाइल्डिश लाइक मटेरियल, चाइल्डिश लाइक थिंग, मीन्स क्या, वो पोएट्री बहुत ही कमजोर हो गया है, वो पोएट्री क्या है, बहुत ही कमजोर हो गया, मीन्स
उसमें ब्यूटी रहा ही नहीं। अगर ब्यूटी रहा ही नहीं तो यू कैन नॉट कॉल इट द वर्क ऑफ सबलाइन। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट कॉल इट द वर्क ऑफ सबलाइन। जिसमें जिसमें सिलीनेस मटेरियल्स यूज किया हुआ, ऐसा चीज यूज किया हुआ, मीन सपोज इन अ पोएम you are writing something and after reading that particular poem, the reader is experiencing the kind of uh, fun. He is telling that there is no moral values, no moral, this poetry was written है ना, not morally, कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम बेकार लगा, पढ़ने से हंसी, मतलब हंसने का मन किया, silliness. And if the text, if a piece of literature is dealing with childishness or silliness, which is also known as puerility, it means that text is not a good text dealing with क्या sublime है ही नहीं उसमें. Clear? Third concept. What was the third concept? Empty passion, ill timed इसको बोलते हैं. Empty passion को क्या बोलते हैं? Ill timed pathos. Empty passion. Third क्या था? Empty passion. Empty passion. What do you mean by empty passion? If any work, any piece of literature, you find that there is not a serious matter is going on, means not related to any passion, एकदम बिल्कुल ब्लैंक, कोई पैसन ही नहीं है इसमें, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये किस पर बेस्ड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, देयर इज नथिंग लाइक दैट. समझ में आ रहा है? एम्पटी पैशंस. क्लियर? उसको क्लोज कर दो ना, उसको क्लोज कर दो, वो उधर इधर साइड और उसको इधर वाला ओपन कर दो साइड. क्लियर? चलो. एंड द लास्ट वन, दैट इज फ्रिजिडिटी. द लास्ट वन, दैट इज फ्रिजिडिटी. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिजिडिटी? क्या होता है बताओ? फ्रिजिडिटी किसको कहते हैं? व्हाट मीन बाय दिस ब्यूटीफुल टर्म फ्रिजिडिटी? लैक ऑफ पैशन. लिख लो, शॉर्ट में लिखना, लैक ऑफ पैशन. इट इज समहाउ रिलेटेड टू एम्प्टी पैशन. लैक ऑफ पैशन, इसको क्या एक और टर्म से इंडिकेट करते हैं? लैक ऑफ पैशन. तो हम लोग जो भी चार बात का डिस्कस किए, द फोर फैक्ट्स दैट वी हैव टॉक्ड राइट नाउ, so all these are the faults related to sublimity, and if any text is having all these faults, that text cannot become the proper text, the proper example of sublimity, sublime. Clear? Now give the title. 5 sources of sublimity. There are 5 sources of sublimity explained by Cassius Longinus. 5 sources of sublimity. Sublimity, it locates the excellence of poetry, है ना, in the profound, ऐसे समझो, बहुत ही इजी तरीके से हम उसको समझेंगे. पहले लिख लो, इसको लिखो, फटाफट लिखो. 5 sources of sublimity मेंशन करना. फर्स्ट वन, grandeur of thought. सेकेंड, वो स्पेस छोड़ देना, समझाने का थोड़ा कुछ लिखाएंगे ना, उसमें बताएंगे तो लिखना होगा, तो स्पेस छोड़ देना. ग्रैंडियर ऑफ थॉट, द फर्स्ट वन. सेकेंड, पैशन. रिमेंबर, पैशन का ये बात बार बार कर रहा है. फ्रिजिडिटी रिलेटेड टू पैशन, है ना. एम्पटी पैशन बार बार कर रहा है. एक्सप्रेशन बार बार कर रहा है, बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव talked right now about the sublime according to Cassius Longinus. What are the definition according to Cassius Longinus? Okay, तो जो वो लॉन्जाइनस जो कि बता रहा था, एक्सप्रेशन से रिलेट कर रहा है वो, हर एक चीज को. एक्सप्रेशन क्या होता है अभी हम तुमको समझाएंगे, उसके अकॉर्डिंग, जिसमें डिक्शन आएगा, पैशन होगा. अब ये सब अगर साथ मिल करके एक बड़ा चीज को कोई खड़ा करेगा, पैशन, ठीक है, डिक्शन,
पैटर्न्स, ये सब साथ में मिलकर जब बड़ा चीज को कंबाइन करके जब बड़ा चीज का फॉर्मेशन करता है तो वही चीज कहलाता है सबलाइन, वही चीज कहलाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ये पीस ऑफ लिटरेचर है, इसमें तुम्हें क्या झलक रहा है, क्या क्या एक्सप्रेशन तुम्हें झलक रहा है, कौन से एक्सप्रेशन तुम इसमें देख पा रहे हो, कैसे पता लगेगा? जैसे सपोज आई एम द राइटर अलेक्जेंडर पोप, आई एम द राइटर अलेक्जेंडर पोप, एंड बीइंग द राइटर अलेक्जेंडर पोप आई एम यूजिंग राइम्ड कपलेट, आई एम यूजिंग राइम्ड कपलेट, क्लोज कपलेट यूज कर रहे हैं। Shut the door, good John, fatty good I said, tie up the knocker and say I am sick, I am dead. क्लोज कपलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा डिक्शन कुछ अलग आया, समझ में आ रहा है? अब जब तुम क्लोज कपलेट देख रहे हो, डिक्शन देख रहे हो, आफ्टर ऑल जब आफ्टर ऑल तुम कंपेयर कर रहे हो, आफ्टर ऑल तुम जब उसका निकाल रहे हो, तुमको पता चल रहा है क्या कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा जो यूज किया हुआ, ऐसा यूज किया हुआ है, नहीं, ही मस्ट बी राइटर अलेक्जेंडर पोप। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई हिम? बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे लिखता है, उसमें क्या झलकता है तुमको? व्हाट आर द थिंग्स विच यू फाइंड व्हाइल यू आर रीडिंग द पोएम, रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर पोप? एक्सप्रेशन। And these things are talked by the writer Longinus. क्लियर? तो पहले ये नोट कर लो, ग्रैंडियोर ऑफ थॉट, फर्स्ट वन, इसमें स्पेस दे देना ताकि हम लोग बीच में कुछ है ना डील कर पाएंगे। सेकंड, पैसन। थर्ड, स्कीमाटा, SCHEMAT, स्कीमाटा। फोर्थ, फ्रासिस, PHRASIS, फ्रासिस। एंड फिफ्थ, कंपोजिशन। ग्रैंडियर ऑफ थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंडियर ऑफ थॉट समझते चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब सारी चीज, ठीक है। ग्रैंडियर ऑफ थॉट, जितने भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो पैशन से रिलेटेड, ग्रैंडियर ऑफ थॉट से रिलेटेड, जो भी हम अभी लिख रहे हैं, या फैरेसिस, जो भी हम लिख रहे हैं, ये सब तुमको ओवरऑल एक ही डिफिनेशन को कंबाइन करके बताएगा। कौन सा, क्या चीज का डिफिनेशन? द डिफिनेशन ऑफ सबलाइन। समझ में आया? ग्रैंडियर ऑफ, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ग्रैंडियर ऑफ थॉट समझना। ग्रैंडियर ऑफ थॉट होता क्या है पहले ये समझना। ग्रैंडियर का मतलब बताओ पहले, व्हाट डू मीन बाय ग्रैंडियर? बताओ। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है? बताओ। ग्रैंडियर ऑफ थॉट, फर्स्ट यही पॉइंट है ना। व्हाट डू मीन बाय ग्रैंडियर ऑफ थॉट? रिमेंबर द लाइन, ग्रैंडियर ऑफ डूम, द थिंग ऑफ इट इज अ जॉय फॉर एवर, ग्रैंडियर ऑफ डूम। याद आ रहा है कुछ लाइन? हाँ, देखो ये जो वर्ड ग्रैंडियोर है, ये वर्ड उस आदमी के लिए लाया गया है जो कि बहुत ही वाइजेस्ट पीपल थे, वाइजेस्ट मैन थे, वाइजेस्ट पीपल थे, यहाँ के पोएट थे, वाइजेस्ट पोएट थे, लाइक विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन। स्पेशली ही इज टॉकिंग अबाउट जॉन मिल्टन। यहां पर मतलब उस टाइम पे तो थोड़ी लॉन्जाइनस को पता था कि जॉन मिल्टन क्या होता है, बिकॉज ही वॉज अ राइटर फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी। बट because the education has reached to some advanced level where the different scholars, particularly from this field, the field of literature, they are updating their new knowledge and they are upgrading, where he says that grandeur you can here relate with, especially you can relate with John Milton. Remember the poem London 1802? Milton, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She's a fan of extended water, alter sword pain. These were the important lines from London 1802 by William Wordsworth. कुछ याद आ रहा है? What do you mean by grandeur?
ग्रैंडियर उसको बोलते हैं जो बाइजेस्ट पोएट थे। अब बाइजेस्ट पोएट किसी को भी, शेक्सपियर को भी ले सकते हैं, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, स्पेशली मिल्टन, टॉकिंग अबाउट मिल्टन, ठीक है, मिल्टन। तो इनका जो बोला हुआ जो स्पेशल लाइन है, इनका जो बोला हुआ जो स्पेशल लाइन है, जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज भी क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ग्रैंडियर ऑफ थाउट, वो जो आदमी जो मर चुके हैं उनके ठाउट आज भी जिंदा हैं। अगर उनके ठाउट को तुम कॉपी करते हो, यू आर डीलिंग विद सबलाइम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? दैट इज ग्रैंडियर ऑफ थाउट। डेफिनेशन लिखना है तो लिखना ऐसे, है ना। इको ऑफ ग्रेट सोल, इको ऑफ ग्रेट सोल। In grandeur of thought, you can mark it here. Echo of great soul. Clear? Echo of great soul. Second, passion. Passion. Second, passion. अगर कोई पोएट्री में पैसन है, अगर कोई पोएट्री में पैसन है, मीन्स उसको मकसद अपना पता है कि मुझे क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इस पोएट्री में क्या होना चाहिए, इस पोएट्री में क्या होना चाहिए। पोएट जो है अपने आप में पोयम है, और पोयम जो है अपने आप में पोएट है। दिस वाज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेटमेंट विच वाज फेमस एट दिस टाइम। पोएट अपने आप में पोयम है, पोयम अपने आप में पोएट है। इस टाइम पे ये सब आया था, ग्रैंडियर ऑफ थॉट के टाइम पे। एंड नाउ आई एम डीलिंग विथ पैशन। पैशन, पैशन, मकसद क्या है पोएट्री का तुम्हारा? अगर मकसद क्लियर है तो इट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल डीलिंग विथ सब्लिमिटी, अच्छा वर्क माना जा सकता है। पैशन क्लियर। थर्ड वन, व्हाट वाज द थर्ड वन? अस्कीमाटा, अस्कीमाटा है ना, अटपटा है अस्कीमाटा। लिखो, द प्रॉपर यूज ऑफ फिगर ऑफ अ स्पीच, द प्रॉपर यूज ऑफ फिगर ऑफ अ स्पीच, अस्कीमाटा, अस्कीमाटा, द प्रॉपर यूज ऑफ फिगर ऑफ अ स्पीच, अस्कीमाटा। उसी को क्या बोलते हैं? अस्कीमाटा बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, On the Sublime, it's a work written by Longinus, and almost 1/3 part of his book, है ना, is dealing with schemata, schemata. Clear? Schemata का how to use the figure of a speech, है ना, कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, या फिर जो भी डिस्कशंस है। तो ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट ऑफ हिज बुक इज एक्चुअली डीलिंग विथ अस्कीमाटा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नाउ फेरेसिस, 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 क्लियर है ये? लिख लिए? चलो फेरेसिस, फेरेसिस बताना, बताओ। फेरेसिस, व्हाट मीन बाय फेरेसिस? बोलो, फेरेसिस का मतलब क्या होता है? नोबल लैंग्वेज होना चाहिए, नोबल लैंग्वेज होना चाहिए प्लस डिक्शन होना चाहिए। नोबल लैंग्वेज होना चाहिए प्लस डिक्शन होना चाहिए। लिख लो। इट इंसिस्ट दैट, है ना, इट इंसिस्ट दैट द टेक्स्ट मस्ट बी हैविंग लैंग्वेज एंड डिक्शन, लैंग्वेज एंड डिक्शन।
तभी वो चीज सबलाइम है, तभी वो चीज सबलाइम है। नोट डाउन। इट इंसिस्ट दैट लैंग्वेज एंड डिक्शन मस्ट बी एप्रोप्रिएट इन द ग्रैंड्योर ऑफ थाउट। लैंग्वेज और डिक्शन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लैंग्वेज और डिक्शन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लिख लो इसको, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, देखो हम क्या इससे पहले जो डील किए थे ग्रैंड्योर ऑफ थॉट से जो डील किए थे, समझना ग्रैंड्योर ऑफ थॉट से डील किए थे। अगर कोई जैसे मान लीजिए जॉन मिल्टन है, सपोज दिस इज द पोएट द राइटर जॉन मिल्टन, है ना, फ्रॉम प्यूरिटन पीरियड, जॉन मिल्टन, याद है ना। तो ये जो राइटर है जॉन मिल्टन, ये अच्छा तभी कर पाया जब इसके पास क्या था? लैंग्वेज था और अच्छा डिक्शन था, जो कि अच्छे तरीका से इसे करना आता था, दोनों को यूज करना था अच्छे तरीका से, अप्रोप्रिएट वे में। और आज उसका टेक्स्ट जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है बेहतरीन तरीके से, लाइक ही इज नॉट डेड, मरा नहीं, ऐसा फील होता है। दिस गिव्स लाइफ टू दी, है ना, याद है कुछ सोनेट्स, विलियम शेक्सपियर। लोग जैसे जैसे तुम्हें पढ़ेंगे तुम्हें अमरता प्राप्त होती चली जाएगी। Phrases is dealing with novel language and diction, and the writer is using this important concept, these two important term, language and diction, in his work. It means his work is maintaining sublimity, the theory of sublimity. Clear? Chalo. Now the last one, composition. 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 कंपोजिशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। कंपोजिशन तुम्हारा बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब तुम अच्छा लिख रहे हो, 4 लाइन अच्छा लिखे, और फिर फर्स्ट स्टेंजा के बाद दूसरा स्टेंजा इतना बेकार लिखे कि मजा ही नहीं आया। तो इसका भी हारमोनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हारमोनी होना चाहिए। मतलब क्या? एक लिखने का तरीका होना चाहिए, बेहतरीन तरीका से लिखा होना चाहिए। अगर तुम्हारा हारमोनी गड़बड़ाया, हारमोनी का कहने का मतलब तुम्हारा लिखने का तरीका, तुम उस स्टैंडर्ड को कैसे मैनेज करते हो। अगर अच्छा हारमोनी तुम्हारा मतलब अच्छा रिलेटेड वर्क है ही नहीं, अच्छा वर्क है ही नहीं। पहला स्टेंजा लिखे रिलेटेड टू हारमोनी, बहुत अच्छा हारमोनी को मेंटेन किया, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, बहुत बढ़िया लगा। सेकंड जब तुम स्टेंजा में आए तो बेकार कर दिया। इट मीन्स तुम्हारा कंपोजिशन अच्छा नहीं है। कंपोजिशन अच्छा नहीं है तो खूबसूरत भरा वर्क हो ही नहीं सकता है। योर वर्क इज नॉट डीलिंग विद सबलाइन। लेकिन अगर तुम्हारा सेकंड स्टेंजा में भी तुमने हारमोनी को मेंटेन किया, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, कंपोजिशन तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। क्लियर? बिकॉज व्हेन योर कंपोजिशन इज एप्रोप्रिएट, इट विल तुमको एक अच्छा तुम्हारा वर्क को, तुम्हारा टेक्स्ट को एक अच्छा टेक्स्ट, एक अच्छा वर्क बनाएगा जब तुम्हारा कंपोजिशन बढ़िया है। इट गिव्स अ डिफिनिट शेप टू द आर्ट। एक अच्छा शेप स्ट्रक्चर कौन देता है? कंपोजिशन देता है। अगर अच्छा तुम्हारा स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, हारमोनी मेंटेन किया, सब कुछ मेंटेन किए हो, तभी तुम्हारा वर्क अच्छा है। इट गिव्स अ डिफिनिट आर्ट, है ना। क्लियर? क्लियर? चलो एक और, because almost we are done with this particular writer Longinus, because these were the most important thing we have to discuss in our class. And और भी कुछ important lines है जो कि हम लोग को देखना है, but we have a very less time, so we cannot go through each and every details which is there related to the writer Longinus. Okay, सो फाइनल एक डेफिनेशन लिखो, एक फाइनल डेफिनेशन लिखो सब्लिमिटी का, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन। एंड यू कैन रिलेट दिस डेफिनेशन विथ लिटरेचर, है ना। तुम इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे लिटरेचर में किस तरह से इसको उतारे। ठीक है, लिखो। इट लोकेट्स द सोर्स ऑफ, बहुत ही अच्छा बेहतरीन है ये। इट लोकेट द सोर्स ऑफ एक्सेलेंस, it locates the source of excellence
in the profundity, of writer's emotion, of the writer's emotion, it locates the source of excellence in the profundity of the writer's emotion and seriousness of his thoughts, क्या बोल रहा है? It locates the, लिखो जल्दी, and seriousness of his thought, क्या डेफिनेशन है? It locates the source of excellence in the profundity of writer's emotion. यहां पर लिख देते हैं, it locates the, है ना, source of excellence. It locates the source of excellence in the profundity of writer's emotion and seriousness of his thoughts. It locates the source of excellence in the profundity of writer's emotion. क्या बता रहा है? एक राइटर है ना, वो कुछ सोच रहा है, सोचना सीरियसनेस होना चाहिए, सीरियसनेस ऑफ थॉट, सोचने का तरीका सीरियस होना चाहिए. अगर सीरियस नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिलीनेस हो जाएगा. क्या होगा? चाइल्डिशनेस हो जाएगा. अगर वो चीज आया तो दैट वर्क इज नॉट डीलिंग विथ सबलाइम. लिखा है ना, as I have noted you, है ना, that these are the facts related to which exploits the sublime, है ना, related to the exploitation of sublime, definition by Longinus. So एक राइटर है, मान लो उसका ये दिमाग है, दिमाग में सीरियसनेस ऑफ थॉट अच्छा चल रहा है, प्लस उसका जो इमोशन है, इमोशन पोर्ट्रे करने में इसको पास महारत हासिल होना चाहिए. क्या बोल रहा है? इट लोकेट्स द सोर्स ऑफ एक्सेलेंस इन द प्रोफंडिटी ऑफ राइटर्स इमोशन. राइटर अपना इमोशन पोर्ट्रे कर में उच्च लेवल का होना चाहिए, एंड उसके थॉट जो है हमेशा सीरियस होना चाहिए, डीलिंग विद सीरियसनेस ऑफ थॉट. समझ में आया? डीलिंग विद सीरियसनेस ऑफ थॉट, अच्छा इमोशन पोर्ट्रे करना, सीरियसनेस ऑफ थॉट डील करना. तो जब भी तुम सीरियसनेस ऑफ थॉट एक अच्छा मैटर लेकर आओगे, एक अच्छा आधार लेकर आओगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड योर वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटेन योर वर्क रिलेटेड टू व्हाट, सो दैट सीरियसनेस मस्ट बी ब्रॉट टू योर टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल with a high seriousness, with a high seriousness of the thought and emotion. So with the combination of this, you can say the work is sublime. So we are almost done with the writers, with the writer Longinus, and tomorrow we will be having our further discussion on some another important writer from the another part of the world literature. Okay, till then, have a great day, and we will be meeting soon with a new lecture on the another video. Thank you.